Ready? Hello class, happy morning. Hello, ma'am. Good morning. Let's start our today's lesson. Lesson number 29, Woman with a Mind from Sudhamurthy's Wise and Otherwise. Before we actually begin the lesson, I would like to ask you one thing. All of you, do you all have a mind? Yes. Yes? You Sure. all have a mind? Yes. Okay. And you always say, please don't mind. Yes. What is that mind then for you? As we all know, we have all five sensory organs, senses of knowledge. The sixth one is nothing but the mind. It's a faculty that you can't actually show it, but that works along with the process of thoughts, feelings and actions altogether. So, woman with a mind is nothing but a lady having her own thoughts and actions, expressing herself and exerting her own thoughts into actions. So now let's have one sharing of experience by Sudhamurthy ji, into which she forces on importance of women being assertive, decisive, experienced and have their mind. We always see to it that various families into which the chief decision makers are men. Women hardly are asked to decide upon something which is very important. Most of the times it can happen about taking some important decisions of buying a car or buying a new house or getting their children educated into XYZ schools and likewise. About obtaining a property, selling off goods, businesses, important decisions of life. Even getting children married, so many things into which most often it is seen that women do not consider themselves to be worth to be considered into the process of decision making. Even many families, men especially, they do think that women should not be a part of this proper decision making. But it is the woman herself who can change the scenario. If you yourself are assertive, you are decisive and experienced, you can change this consideration and you can also rise into your own and others' estimation and you can have your mind in your life. So what is this experience? Let's all understand. There are two important pairs discussed, into which the first is Nalini and Satish, well educated, career oriented, good to do family, and Yellamma and her husband, not much educated but having the will and confidence. So if we compare Nalini's life with that of Yellamma, as a woman of mind, Yellamma stands stronger than Nalini. So it's not about just being educated and having everything in life, but to have one's mind is also more important for a woman, which Yellamma shows, and Yellamma explains why this was important to her and how she changed that importance of having her mind and how it changed her atmosphere at her family, and then everybody accepted her as the responsible figure in the family, an important one to make important decisions. So shall we all start with the actual text? Yes, ma'am. Okay, so women with a mind. Who is this woman with a mind? It was a rainy day and one of our national leaders had died. Sudhamurthy ji is sharing her experience, into which one of the rainy days when she was out and somebody important nationally was died. All students and colleges were closed as a mark of respect. और उनके मृत्यु के श्रद्धांजलि के चलते हुए schools और colleges उस दिन बंद थे सम्मान उनको प्रदान करने के लिए. I have never understood why educational institutions should be closed when a national leader dies. Sudhamurthy ji is thinking here in a line into which is there any need to actually give an off to the schools and colleges. जब कोई अगर बड़ा कोई national leader
अगर गुजर जाते हैं तो उस दिन भला स्कूल और कॉलेजेस बंद क्यों रखें, उसका जरूरत नहीं है. One can shed a few tears or offer when national leader dies. One can shed a few tears or offer condolences if the person is very close. Closing institutions means keeping children on the streets. They go to films or shop or while away their time in canteens. At the end of the year, with a lot of the syllabus still to be covered, teachers will be forced to rush through the chapters. Ultimately, the students suffer. Now here, Sudhamurthy ji being a hardcore teacher, a professor, she is thinking about the student side. उस दिन बारिश का समय था और किसी एक नेता की डेथ हो गई, तो उनको श्रद्धांजलि के तहत स्कूल और कॉलेजेस बंद थे. तो सुदामुर्ति जी यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसा करना बहुत ही गलत लग रहा है मुझे कि एक टीचर होने के नाते कि स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ज़ाया जाता है और वो कहाँ पे है, रास्तों पे घूम रहे हैं, फिल्म्स देखने को जा रहे हैं, किसी दुकानों में घूम रहे हैं, अदरवाइज कैंटीन में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. और फिर बाद में जब जैसे ही साल खत्म होने को जाता है तो टीचर्स को स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कतों का सामना करके वो सिलेबस पूरा करना होता है. इसमें स्टूडेंट्स सफ़र होते हैं, बहुत ज़्यादा असर किन पे आता है, स्टूडेंट्स पे. नलिनी इज अ प्रोफेसर एट अ कॉलेज इन बेंगलोर, अ PhD इन हिस्ट्री. शी इज अ गुड टीचर एंड एन एक्सीलेंट वाइफ. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो स्टोरी का वो इंट्रोड्यूस हुआ है. हु इज दैट? नलिनी. And then later on, her husband also will come into picture, that is Satish. So नलिनी के बारे में सुदामुर्ति जी हमें बता रहे हैं कि नलिनी is a professor at the college in Bangalore, a PhD in history. हिस्ट्री के प्रोफेसर है नलिनी मैम. और क्या है, शी इज़ अ गुड टीचर एंड एन एक्सीलेंट वाइफ. वो एक बहुत अच्छे टीचर है और एक बहुत अच्छी वाइफ. I had not met her for a long time, so one day I decided to visit her. बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे थे, ठीक है, बहुत दिन नहीं मिल पा रहे थे, एक बार हमने तय करके मिलना फाइनल किया था. फिर one day I decided to visit her. सुदामुर्ति जी ने सोचा मैं उनको जाके मिलूं. She was really excited to see me. नलिनी को बेहद ज़्यादा खुशी हुई और उनको मिलने का बहुत मन भी कर रहा था. She was cooking a special meal for her only son who had returned from school. और जब सुदामुर्ति जी गए तो उन्होंने क्या देखा, उनका बेटा स्कूल से वापस आने वाला और उसके लिए वो स्पेशल मील बना रहे, ठीक है, खास खाना बना रहे थे. While her son was preparing for the 12th standard exams, her husband Satish, an engineer in a multinational company, was away at work. So there was enough space and time for us to talk. तो अभी नलिनी के घर का माहौल उन्होंने बता दिया है. नलिनी का बेटा है और वो 12th की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और उसके हस्बैंड है जिनका नाम सतीश है, वो इंजीनियर है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और काम के सिलसिले में ही वॉज स्टेइंग आउट, ओके, वॉज अवे एट वर्क. तो घर पे वो नहीं थे, किसी काम के चलते हुए बाहर थे, तो उनके पास बहुत समय था बातें करने के लिए. सो देयर वॉज इनफ स्पेस एंड टाइम फॉर अस टू टॉक, ठीक है. I haven't seen you around at all, Nalini. What's new in life? सुदामुर्ति जी उनको पूछ रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? What's new in life? नया क्या चल रहा है? Nothing. I have been busy because Samir is in the 12th standard. Okay, there is one more character, Nalini and Satish's son, that is Samir. तो नलिनी मैम क्या बता रहे हैं सुदामुर्ति जी को? कुछ खास नहीं चल रहा है, नया कुछ नहीं है. समीर 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है. Nothing, I have been busy because Samir is in the 12th standard. मैं खुद ही व्यस्त हूँ. 12th का तैयारी कौन कर रहा है? बेटा समीर. लेकिन मैं खुद व्यस्त हूँ. See, look at the life. We're talking about women with the mind. Okay. Keeping everybody's mind when we keep our own mind, just like you expressed, yeah. Exactly, because most often we are so much engrossed into else's, maybe our husbands, in-laws and children's lives, that we are always keeping them on mind first. Okay, so this is somewhere like a correction for all of us. So then what does next happen? Nothing, I am busy because Samir is in the 12th standard. हाँ, कुछ खास नया तो नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी व्यस्त हूँ और 12वीं की तैयारी कौन कर रहा है? Samir. Look at the contrast.
कम ऑन नलिनी, यू आर नॉट अपियरिंग फॉर द एग्जाम। सुधामूर्ति जी को क्या बता रहे हैं, हाँ ठीक है नलिनी, लेकिन आप तो एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। वॉट यू कैन डू इज हेल्प हिम एट होम। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, घर पे उसकी मदद कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया से आप खुद को कट ऑफ कर दो, अलग रखो, ताकि वो 12th का एग्जाम दे रहा है इसके लिए। नलिनी डिड नॉट एग्री, शी वाज टेंस एंड वरीड। लेकिन नलिनी को वो बात समझ में नहीं आई, वो एग्री नहीं कर रहे थे। वो खुद कैसे थे, शी वाज टेंस एंड वरीड, बहुत चिंतित थे और परेशान भी थे, क्योंकि समीर 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। डू यू रियली एक्सपीरियंस इट अराउंड हैपनिंग? जब आप 10th में हो, 12th में हो, तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को टेंशन है important examination. Like whenever there is something happening very important in the life phase of the students, appearing for examination and something like that very important, parents are more tensed than the appearing people, students, their wards. It happens. Nalini is also nowhere less than that. She was more tense, more worried about than Samir, most probably. Nalini, what is the problem? Have you finished with the construction of your house? सुधामूर्ति जी उनको पूछते कि नलिनी क्या प्रॉब्लम है, घर का काम खत्म हुआ क्या? नया घर बना रहे थे वो, तो घर बना के हो गया पूरा। सतीश इज लुकिंग आफ्टर दैट। नलिनी का आंसर क्या है उसमें, हाँ सतीश उसकी देखभाल कर रहा है, वो चीज़ में दखल दे रहे हैं। सतीश इज नलिनीज हस्बैंड। यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू व्हीकल, व्हाट हैपेंड? और फिर वो और पूछते हैं, अच्छा आप सोच रहे थे कि नया गाड़ी लेना है, कुछ व्हीकल लेना है, उसका क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? यस, सतीश इज प्लानिंग टू बाय अ स्कूटर रादर दैन अ कार। उसमें भी सतीश का ही नाम आया है। हाँ, सतीश ने ये सोचा है कि प्लानिंग टू बाय अ स्कूटर रादर दैन अ कार। हाँ, कार के अलावा स्कूटर लेने के लिए सतीश ने सोचा है। आई soon realized that all the decisions were Satish's. मुझे ये समझ में आया कि इसके पूरे डिसीजन सतीश ही ले रहे हैं। And it's not shocking, you know, there are some people, I will tell you an example of my neighbor, you will not believe, the lady is almost of 55 of her age, and husband has recently got retired from her services, maybe 61 or 2, and I got shocked when I got to know that every year the sari is selected by the husband. She has never been there to buy a sari of her mind. एक साड़ी लेने के लिए उनकी पसंद की साड़ी अभी भी उन्होंने कभी भी नहीं ली है। Every time it is the husband who will of course gift so many sarees, but that to by his mind, not by the mind of a woman. Here we are talking about woman with a mind. आपका खुद का choices, preferences, कुछ तो एक्सपीरियंसेस में आपका खुद का होना बेहद ज़रूरी है, जो नलिनी के लाइफ में सुधामूर्ति जी को मिसिंग नजर आ रहा था। ठीक है, नलिनी, डोंट यू हैव प्रेफरेंसेस? सुधामूर्ति जी को ये समझ में आया कि अरे आई सुन रियलाइज दैट ऑल द डिसीजंस वर सतीश, सभी डिसीजंस यहाँ पे सतीश ही ले रहा है। नलिनी, डोंट यू हैव एनी प्रेफरेंसेस? आपका खुद का कुछ भी चॉइस नहीं है क्या नलिनी? सतीश इज बेटर दैन मी इन ऑल थिंग्स। ठीक है, तो नलिनी क्या बोल रही है, सतीश मेरे से हर काम में बेहतर है। ही नोज द आउटसाइड वर्ल्ड, उनको बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी है। सो हिज डिसीजंस विल ऑलवेज बी करेक्ट, तो उनसे कुछ गलत डिसीजंस होगा ही नहीं। मेरे से कुछ डिसीजंस गलत हो सकते हैं, मेरे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बाहर नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनसे कभी कुछ गलती नहीं होता है। डू यू सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज स्टिल परसिस्टेंट इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज? ऐसे होता है ना, इफ द वाइफ इज अ हाउसवाइफ these days, housemaker in a better sense of the word, and so it happens that the lady doesn't take much decisions. It happens, and at a certain point of time it happens to be the chief decision maker of the family, to be just a man and man. छोटा मोटा हर चीज़ में हस्बैंड को पूछती हो, हस्बैंड बताएंगे तब, वो सिलेक्ट करेंगे, वो आएंगे तब मैं करूँगी। ऐसा धीरे 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 ऐसा होते जाता है। दिस इज द साइकोलॉजी into which then woman
even if she is educated, she may lose her mind, which is not good for any woman. Now see what is happened of Nalini. She's saying that Satish is better than me in all things. He knows the outside world. He has lots of contacts, so his decisions will always be correct. हस्बैंड की तारीफ हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन खुद को इनडायरेक्टली खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है सभी इसमें। क्या मैं करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकती हूँ? क्या मुझे किसी के भी साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है? क्या मेरे से हर काम गलत ही होगा? ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है जो नलिनी खुद की तरफ पूछ रही है, जो नलिनी को भी पता नहीं चल रहा है। सुधामूर्ति जी being an outsider, she is able to gauge that somewhere Nalini is going wrong. Nalini is not keeping her mind. Then I was surprised by her answer. Usually educated, working women are more confident, independent and like to make their own decisions. सुधामूर्ति जी बता रहे हैं कि मैंने तो यही देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई औरतें जो काम में जुड़ी हुई हैं, कहाँ पे काम कर रही है, वैसे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं और उनको अपने खुद के डिसीजंस लेना पसंद होता है। ठीक है, वो निर्णय लेते हैं, वो स्वतंत्र व्यक्तिमत्व के होते हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। लेकिन नलिनी में वो बात उनको दिखाई नहीं दी। It is the contrast. The next day I was traveling to a village by bus. अभी दूसरा है, सेकेंड पेयर, ओके। यहाँ पे नलिनी, सतीश और समीर का एपिसोड एक साइड में है। अभी उसका कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल सुधामूर्ति जी ने एक्सपीरियंस किया, वो क्या है? येलम्मा एंड हर हस्बैंड। What is that experience? Let's see. The next day, अभी वो दूसरे दिन, the next day I was traveling to a village by bus. बस से किसी गांव में सुधामूर्ति जी सफर कर रहे हैं। For a change, the bus was not crowded. बस में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। A village woman, येलम्मा, got into the bus along with me. एक गांव की एक औरत थी, उसका नाम येलम्मा है। वो सुधामूर्ति जी के साथ में बस में ट्रैवलिंग के लिए चढ़ गई। फिर क्या उनकी बातचीत क्या होती है? क्या येलम्मा कॉन्ट्रास्ट नलिनी है? देखते हैं। I knew her because whenever I was in a village, she would bring me fresh vegetables and refuse to accept money. सुधामूर्ति जी हमेशा छोटे मोटे गांव में जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ काम करने का जरूरत है। वैसे तो येलम्मा कभी भी उनसे मिलती थी तो हमेशा उनको कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ऑफर करती थी और पैसा लेने के लिए मना करती थी, ताकि ऑफकोर्स उसको बेहद अच्छा लगता था कि सुधामूर्ति जी औरतों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का भला कर रहे हैं और इसके गिफ्ट के तौर पे हमेशा वो फ्रेश वेजिटेबल्स ऑफर करती थी, पैसे को मना करती थी। Then Yellamma was around 35, healthy and cheerful. Now this is in contrast to Nalini. Yellamma around 35 एज की है, healthy है, cheerful है. Her well-oiled hair was tied in a knot and a thick black bead mangalsutra rested on her neck. तो उसका अपीयरेंस डिस्क्राइब किया है सुधामूर्ति जी ने यहाँ पे। और वेल ऑयल्ड हेयर, बालों में अच्छी तरीके से तेल लगाया था। बस टाइड इन अ नॉट, जोड़ा बनाते हैं ना, पूरे बाल बांध के जोड़ा बनाया था। एंड अ थिक ब्लैक बीड मंगलसूत्र रेस्टेड ऑन हर नेक, तो और काला मणियों का बना हुआ मंगलसूत्र उसके गले में था। She also wore heavy gold ear studs, a big nose ring and more than a dozen green glass bangles on each hand. तो देखा जाए तो एकदम ट्रेडिशनल लेडी है, साउथ इंडियन लेडी, बेंगलुरु की, और बहुत सारे गोल्ड ईयर स्टड्स है, कान में भी सोने का है बड़ा सा, अ बिग नोज रिंग, ठीक है, नाक में चमकी है बड़ी सी बिग नोज रिंग एंड मोर देन अ डजन ग्रीन ग्लास बैंगल्स ऑन ईच हैंड, और दोनों हाथ में, डजन इज 12 इन नंबर एटलीस्ट, ठीक है, इतने दर्जनों भरे हरे भरे बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई है। नो कॉस्मेटिक्स एंड नो प्रिटेंस, कुछ मेकअप नहीं, नो कॉस्मेटिक्स नो प्रिटेंस, कुछ भी मेकअप नहीं है, एज नेचुरल एज सिंपल। हर प्लेजेंट स्माइल एडेड रेडियंस टू हर ग्लोइंग रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, और उसकी जो बहुत खुशनुमा स्माइल थी वो उसके ब्यूटी में और चार चांद लगा रही थी। रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, रेडियंस टू हर ग्लोइंग रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन,
So this is what a 35-year-old Yellamma appears to Sudhamurthy ji on a bus travel in a village. Now, is Yellamma a woman with a mind? What is her story? Could she exert her mind in her family, in her profession, and how? Let us see. Yellamma and her husband owned a small garden in the village, and that was their biggest asset. They grew and sold seasonal vegetables for a living. Yellamma क्या काम करती है? वेजिटेबल सेलर का, ठीक है, सब्जियां बेचने का। तो सब्जियां खुद से वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ पे? विलेज गार्डन में उनका एक खुद का स्मॉल गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन है। वो और उसके हस्बैंड उसकी देखभाल करती है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सीजनल वेजिटेबल्स वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में बेच के उनसे उनका गुजारा हो रहा है। अम्मा, I have to rush back to my garden today, she said. और सुधामूर्ति जी को वो क्या बोले वहाँ पे? अम्मा, I have to rush back to my garden today. मुझे जल्दी जाना है, हाँ, मेरे खेत में और मेरे वेजिटेबल गार्डन में मुझे जल्दी लौटना है। Why are you in such a hurry? Isn't your husband in the garden? I asked. तो सुधामूर्ति जी ने उनसे पूछा कि यल्लम्मा, क्यों इतनी जल्दी आपको क्यों है? क्या आपके हस्बैंड नहीं है? क्या आपके वहाँ पे खेती में ध्यान रखने के लिए, आपके गार्डन को संभालने के लिए इतना जल्दी क्यों है आपको? Yes, but still I must go because I have to take an important decision today. हाँ, लेकिन मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे, लेकिन मुझे जाना बेहद जरूरी है। I have to sow the seeds ideal for the next 3 months. क्योंकि मुझे आज ऐसे बीज बोने हैं जो आगे 3 महीने में उससे वेजिटेबल्स बनेंगे और वो सीजनल वेजिटेबल्स हमें मिल सकेंगे। और वो बीज बोने का मेरा इम्पोर्टेंट काम है, मुझे ये जाना पड़ेगा। Surely your husband Rudrappa can do that, I suggested. So what is the name of Yellamma's husband? Rudrappa. Surely your husband Rudrappa can do that, I suggested. तो सुधामूर्ति जी यहाँ पे फिर से उनको बोलते हैं कि तो क्या आपके हस्बैंड रुद्रप्पा जो है वो करेंगे ना, वो बीज बो पाएंगे? इतना डिफिकल्ट है क्या? इतना सालों से वो कर रहे हैं, आपको ही जाना क्यों जरूरी है? Sudhaji is trying to probe into the situation so that she should understand how Yellamma is more a woman of her mind than Nagini. Then next, no, I have to make my own decision. यल्लम्मा क्या बोलती है? नहीं, मुझे मेरा खुद का निर्णय लेना होता है। Rudrappa is also very good and experienced, but I should also give my views because not all seeds can be sown in the rainy season. रुद्रप्पा वो खुद तो बहुत अच्छे हैं और एक्सपीरियंस्ड भी है, बहुत हुनर वाले हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन I should also give my views. मुझे भी अपनी राय देनी है because not all seeds can be sown in the rainy season. बहुत सारे जो हमारे पास बीज हैं अलग अलग सब्जियों के, उनमें से सभी सब्जियां रेनी सीजन में नहीं बोते हैं। तो मुझे ही देखना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा होता है ना घर में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए नहीं, मुझे ही जाना होगा। जिम्मेदारी लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, अपना माइंड लेते हैं। दैट्स वेरी गुड साइन ऑफ अ पावरफुल वुमन। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सुधामूर्ति जी बोलते रहे, वाह, मुझे तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। Initially, when I gave my opinions, they used to laugh at me. Now, Yellamma is talking about her earlier life when she was not able to keep her mind. It's a journey in any woman's life when she tries to keep her mind. Initially, there is some resistance. Similarly, Yellamma also faced this. शुरुआती में वो बोल रहे हैं कि जब मैं मेरी राय कुछ देती थी तो मुझे हंसते थे लोग। I realized, however, that unless I became assertive, they would not give me any chance to make decisions. धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि जब तक मैं मेरा कहना ना बोलूँ, मैं मेरे कहने पे ठाम जब तक ना रहूँ, assertive, confident, stick to my opinion जब तक ना रहो, तब तक मुझे कोई भी डिसीजन लेने का मौका नहीं देगा। Without making decisions, I would not get experience. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जब तक आप कुछ भी डिसीजन ना लो, आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हो सकता है कुछ डिसीजंस आपके गलत हो, उससे भी तो एक्सपीरियंस मिलने वाला है।
बराबर हो तो फायदा है, लेकिन गलत हुआ तो भी तो एक्सपीरियंस है। तो जब तक आप डिसीजन नहीं लेते आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, और विदाउट एक्सपीरियंस नथिंग कैन वर्क आउट इन द एंड। सो आई शुड नॉट गेन एक्सपीरियंस, आई वुड नॉट गेन द एक्सपीरियंस इफ आई डोंट टेक एनी डिसीजन। सो आई स्टार्टेड सोइंग वेजिटेबल सीड्स इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक छोटे से साइड में एक छोटा सा गार्डन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने किया। आई स्टार्टेड सोइंग वेजिटेबल सीड्स इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। बहुत बड़ा गार्डन है, उसका एक कोने में उन्होंने स्टार्ट किया कि neither my mother-in-law nor my husband knew that place and I experimented। एक छोटा सा अपना एक्सपेरिमेंट लैब के जैसा छोटा सा कोने में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शुरू करने को स्टार्ट किया कि चलो एक बीज बो के इसका कैसे आता है, कितने दिन लगते हैं, और धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस से फिर बाद में डिसीजंस देने लगे जो एकदम परफेक्ट आने लगे और उससे सबका फायदा होने लगा। तब जाके उनके डिसीजंस भी सीरियसली लेने को स्टार्ट किया सबने। एंड देन शी started to keep her mind। So I started sowing vegetable seeds in one corner of the garden. Neither my mother-in-law nor my husband knew that place that I experimented। मैं जब वहाँ पे मेरे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो जगह मेरे हस्बैंड को और मेरे सासू माँ को पता नहीं थी। The first few times they failed। शुरुआती की कुछ दिनों में मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, बट आई डिडंट गिव अप। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। Then I learned which vegetable grew in which season। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि किस सीजन में कौन सी सब्जी अच्छे से इस एटमॉस्फेयर में आती है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। टुडे दे रिस्पेक्ट माय आइडियाज एंड आस्क मी टू डिसाइड। अब आज ऐसी सिचुएशन है कि वो मुझे ही पूछते हैं और मैं ही तय करती हूँ, ताकि मैंने उतना एक्सपीरियंस से पढ़ाई करके सब चीज़ें जानी। Since I experimented, I can decide. And so they wait and ask for me what to sow, right? So she became more powerful with the experiment and taking her decisions. This year, I want to plant carrots and cauliflowers। अभी इस साल मुझे carrots और cauliflowers के बीज बोने हैं। I'm sure that the yield will be good and fetch good money। मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी फसल अच्छी आएगी और हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। Though not educated, though not trained, Yellama was so different from Nalini। खुद ज़्यादा शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, अलग से ट्रेनिंग भी नहीं है, फिर भी Yellama was so different from Nalini। नलिनी एक प्रोफेसर है, एजुकेटेड है, राइट, वेल प्लेस्ड, करियर ओरिएंटेड वुमन है, लेकिन फिर भी उसको अपनी खुद के डिसीजंस राय नहीं है, लेकिन वो येल्लम्मा को है। एंड सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू कपल्स, नलिनी एंड सतीश, येल्लम्मा एंड रुद्रप्पा। येल्लम्मा स्टैंड्स हायर टू नलिनी in terms of taking her own decisions and also exerting them, being assertive, being more confident and having her mind in the profession that she is a part of. That's the only thing that makes Yellamma more impressive than Nalini. So this is all about the lesson, woman with a mind. I hope you all have understood it. If you have any doubts, you may ask. No, ma'am. Anything? No, ma'am. Alright. Please do study the lesson at home and complete the exercise. We will see you in the next lesson. Till Thank then, you. bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.